Well, before starting to biomass, let us see the sources of biomass. These are the different sources of biomass: forestry crops and residue, agriculture crop and residue, sewage, municipal solid waste, animal residue like cow dung, animal dung, and industrial residue, organic industrial residue. Okay, so these are the sources of biomass. When we see these sources, then we can say all these are the renewable source of energy. So biomass is a renewable energy from plants and animals. Okay, all these sources are either obtained from the plant or animals. So biomass is a renewable energy which are obtained from either plant source or animal source, and it is a renewable organic material. These are the organic source. Organic means compounds of carbon and hydrogen. Apart from this, some amount of oxygen may also be present. So all these sources are renewable because they can be renewed within 10. Some will be regenerated in 1 year, 2 year, 10 year, and so on. So these are the renewable source of energy, and these are mostly obtained from the plant and animals. Okay. अब बायोमास जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी? तो इट स्टोर्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम द सन. एंड हाउ दिस केमिकल एनर्जी कम्स फ्रॉम? Plants prepare their own food by the process of photosynthesis. So during the process of photosynthesis, solar energy are trapped and get converted into chemical energy. Okay. Now, we have already discussed the sources of biomass energies: the wood processing waste like firewood, chips, lumbers, furniture mills, sawdust, and waste. All these are the wood and wood processing waste. Second one is the agricultural crop and waste material. Similarly, forestry crop and residue. And biogenic material in municipal solid waste like paper, cotton, wool products, animal manure and human sewage, animal excreta, animal residue, cow dung. Okay, all these are the sources of biomass energy. All these sources are organic in nature. These are renewable source and organic. They contain organic material. Organic material means the compound of carbon, hydrogen, and oxygen. Simplest compound. Well, next, how biomass can be converted into useful form of energy. So there are various processes by which biomass can be converted into useful energy. First one is the direct combustion. That means the burning of the biomass to produce heat. We directly burn dry leaves, peppers, and product from the waste from the plant and animal to produce heat. So this is the direct combustion. Direct jalana hai unko. Second one is the thermochemical conversion. Thermochemical conversion, as the name indicate, thermochemical, heat की presence में कुछ chemical conversion हो रहा है. यहाँ पर हम कुछ हीट अप्लाई करेंगे, कुछ टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करेंगे और उसके कारण हमको वेरियस सॉलिड गैसेस एंड लिक्विड फ्यूल ऑब्टेन होंगे. थर्ड वन, हीट नहीं, ओनली केमिकल कन्वर्जन, जिसमें हमको लिक्विड फ्यूल ऑब्टेन होता है. थर्मो मतलब हीट, टेम्परेचर को कम या ज्यादा करके, और केमिकल मतलब ओनली केमिकल्स लाइक कैटलिस्ट वगैरह की प्रेजेंस में या कुछ और केमिकल आपने मिला के उसको किया. बायोलॉजिकल कन्वर्जन मीन्स माइक्रोब्स की प्रेजेंस में आप कर रहेंगे. फर्मेंटेशन की प्रोसेस, एनारोबिक फर्मेंटेशन, बायोगैस जो प्रोड्यूस होती है बायोगैस प्लांट में, गोबर गैस जो बोलते हैं. सो दीज आर द सम टेक्निक्स थ्रू विच energy from the biomass can be converted into useful form of energy. So
There are basically 4 ways. First one is the direct combustion. Second one is the thermochemical conversion, then chemical conversion, and then biological conversion. Let us see one by one. Okay? Okay? Yes, Any? Okay. So first one is direct combustion. As the name indicate, direct conversion means direct burning of fuel. Burning of fuel means burning of biomass to produce heat energy. And this heat energy is used for industrial process, for generating electricity in the steam turbine and so on. So direct combustion means direct burning of the biomass product. Second one is the thermochemical. As the name indicates, thermochemical means something change in the temperature. So there are two methods, pyrolysis and gasification. Okay. In thermocombustion, generally the biomass is heated in a closed pressurized vessel called gasifier at high temperature. And pyrolysis and gasification both are differ only the amount of oxygen present and amount of the temperature. Pyrolysis और gasification, pyrolysis जो हो just break down है तो temperature की condition थोड़ी सी लोअर साइड रहेगी और गैसिफिकेशन में और ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर आपको क्रिएट करना पड़ेगा. तो थर्मोकेमिकल में हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं बायोमास मटेरियल का. वेल पायरोलिसिस में हम हीटिंग जो करते हैं इट इज अराउंड 800 to 900 डिग्री फ़ारेनहाइट या हम कहेंगे 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक कंप्लीट क्लोज वेसल जिसको हम गैसिफायर कहते हैं उस पर हीट करते हैं. पायरोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन होता है और इस प्रोसेस के थ्रू हम चारकोल, बायो ऑयल, डीजल, रिन्यूएबल डीजल, मीथेन एंड हाइड्रोजन ये गैस प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोट्रीटिंग. यहाँ पर पायरोलिसिस और हाइड्रोट्रीटिंग में केवल एक ही डिफरेंस है कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस पे हम ये प्रोसेस अगर करवाएंगे तो बायो ऑयल प्रोड्यूस होता है. ओके, इज इट ओके? ओके, पायरोलिसिस में हम हाई टेम्परेचर और जब हाइड्रोजन भी उसमें इंक्लूड कर देंगे हाई टेम्परेचर के साथ तो वो हाइड्रोट्रीटिंग कहलाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज द गैसिफिकेशन. गैसिफिकेशन में टेम्परेचर अभी हमने पायरोलिसिस में टेम्परेचर रेंज जो है वो 400 to 500 है, बट इन गैसिफिकेशन टेम्परेचर जो होगा वो रेंज और बढ़ जाएगी, अप्रॉक्स 1000 डिग्री के अराउंड 800 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम करेंगे. और कंट्रोल अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन और स्टीम की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिच गैस जो होती है जिसको हम बोलते हैं सिन गैस का फॉर्मेशन होता है. ओके, जो पायरोलिसिस है वो जनरली बायो ऑयल लिक्विड फ्यूल आपको देगा या सॉलिड फ्यूल और मीथेन हाइड्रोजन एज ए बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा. बट गैसिफिकेशन में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो रहेंगे वो कैसे होंगे, गैसियस प्रोडक्ट होंगे और जो गैसेस मिक्सचर रहेगा उसको हम बोलेंगे सिन गैस. सिन गैस को हम फर्दर यूज कर सकते हैं डीजल इंजन में या हीटिंग पर्पस से या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए गैस टरबाइन में हम इसको यूज कर सकते हैं. सिन गैस में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इसमें से हाइड्रोजन को अलग से रिमूव करके और एज अ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी हम यूज कर सकते हैं. इज इट ओके? ओके, एनी डाउट? यस मैम. ठीक. अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं आफ्टर गैसिफिकेशन एंड सीन गेज फॉर्मेशन, केमिकल कन्वर्जन. केमिकल कन्वर्जन इज आल्सो नोन एज ट्रांस एस्टरिफिकेशन. इसमें हम वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट या ग्रीजेस जो होता है उससे हम क्या फॉर्म करते हैं, बायोडीजल. केमिकल कन्वर्जन जो होगा वो केमिकल की प्रेजेंस में होगा, कुछ ना कुछ कैटलिस्ट यूज करेंगे और इसमें हम जितने भी
ग्रीजेस वगैरह, उसको फैटी एसिड मिथाइल एस्टर फैम, फैम मीन्स क्या है, उसको हम बोलते हैं बायोडीजल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन किसका होता है, हमेशा ऑयल का, एसिड्स का, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, ग्रीजेस, इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बायोडीजल का फॉर्मेशन करते हैं। Last one is the biological conversion. As the name indicate, biological conversion, conversion in presence of bio, bio means something related to living, और यहाँ पर लिविंग जो है वो कौन से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी प्रेजेंस में हम करते हैं। और एनारोबिक प्रोसेस जब भी होती है तो उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। जैसे दही है, दही जो है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। ओके, खमीर उठाते हैं तो इट इज अ फर्मेंटेशन, जलेबी के लिए या फिर आप इडली वगैरह बनाते हैं तो फर्मेंटेशन करते हैं, उसको रात भर भिगो के रखना, उससे वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। तो बायोलॉजिकल कन्वर्शन इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसमें हम क्या करते हैं, बायोमास से इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं और एनारोबिक डाइजेशन टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल नेचुरल गैस, इथेनॉल भी प्रोड्यूस होगा और उसके साथ साथ अब बायोगैस की जो प्रोसेस होती है, बायोगैस प्लांट सभी ने देखा होगा, बेसिकली गांव में जनरली होता है, जहाँ खेत वगैरह होते हैं, जहाँ काउडंग वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर जो गोबर है वो उससे गोबर गैस ऑब्टेन करते हैं। डाइजेस्टर होता है जिसमें क्या करते हैं हम, गोबर और बहुत सारा पानी मिक्स कर देते हैं और उसके बाद उसको बहुत दिनों तक ढक के रख देते हैं। धीरे धीरे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रहेगा, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वहां पर जितना भी आपका गोबर रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस प्रोडक्ट में, जो कि रिच इन मिथेन होता है, और स्मॉल अमाउंट में दूसरी चीजें भी हो सकती है, पर बेसिकली इट कंटेन्स मीथेन। तो ये जो मीथेन है दैट इज कॉल्ड एज द बायोगैस। इट इज जस्ट लाइक अ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के जैसा ही है। इसमें से अगर हम, it may capture from the solid waste landfill, properly treated renewable natural gas has the same uses as the fossil fuel natural gas। जो आपका अभी यहाँ से बायोगैस या बायोमीथेन आपको मिली है एनारोबिक डाइजेशन की प्रेजेंस में, ये ह्यूमन एक्सट्रैक्ट वगैरह जो होते हैं, ह्यूमन वेस्ट है, उसके थ्रू भी बायोलॉजिकल कन्वर्जन करके और बायोगैस ऑपरेट करते हैं। तो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स बाय विच biomass, energy from the biomass can be converted into useful form of energy. Okay, well, next, what are the advantages of the biomass energy? We have already discussed, it is a renewable source of energy, it is the organic source of energy, and it is carbon neutral. Carbon neutral means जितने अमाउंट में कार्बन सनलाइट की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होके केमिकल फॉर्म में स्टोर रहेगा, उतने ही अमाउंट में वो वापस लिबरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो एक बैलेंस बना रहेगा कार्बन का, इसलिए इट इज अ कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस। इट रिड्यूसेस द ओवर रिलायंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हम बहुत ज्यादा डिपेंड है, उसको थोड़ा सा कम कर देता है बायोगैस। और जो वेस्ट हमारा है जो यूज का नहीं है और जो कि बाहर अगर ऐसा पड़ा रहेगा तो बहुत सारी गंदगी और स्मेल क्रिएट करेगा, तो उसको भी कम करने में कुछ हद तक ये क्या करता है, मदद करता है। और ये इट इज लेस एक्सपेंसिव देन द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कंपैरेटिव कॉस्टली है, और अगर बायोगैस या दूसरे भी प्लांट है, आप देख रहे हैं ना, इंदौर नंबर 1 आ रहा है, तो इट इज बेसिकली यहाँ पर जितना भी वेस्ट का मैनेजमेंट है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो रहा है। देवगढ़िया में जो प्लांट इसका बना हुआ है, पूरी सिटी का जितना भी वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन होके, और जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो देवगढ़िया में गैसिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू वहां पर क्या हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर जितना भी वेस्ट है, वेस्ट से यूजफुल एनर्जी कन्वर्जन में करके और उसको गैसियस प्रोडक्ट और लिक्विड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वो जितनी भी देवगुराड़िया वाले जो प्लांट है उसमें यही बायोमास से ही हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, बायो एनर्जी यूजफुल फॉर्म में कर रहे हैं।
ठीक है, वो इंडस्ट्रीज से भी कलेक्ट करते हैं, वो बाहर जो आपका पड़ा हुआ कचरा है उससे भी वो भी कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद सेग्रीगेशन होता है और कुछ का लैंडफिल हो जाता है। लैंडफिल मतलब कि बहुत सारी ऐसी लैंड रहती है जो यूजफुल नहीं है, वहां पर डंपिंग कर दिया जाता है, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे करके, और वहां पर इस गार्बेज को जो यूजफुल नहीं है, जो ऑर्गेनिक के बजाय दूसरा भी है, तो उसको वहां पर डंप किया जाता है। तो अगर आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिक वाला पार्ट लैंडफिल कर देंगे, तो लैंडफिल में जो डंप करने पर वेस्ट हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि उसमें से जो ऑर्गेनिक पार्ट है जो बायोमास के फॉर्म में, उसको बायोडीजल, बायोगैस या अदर सोर्सेस के फॉर्म में उसको यूज किया जाए। ओके, so by burning solid waste, the amount of garbage dumped in the landfill is reduced. Apart from this, the chemical conversion and biological conversion जो होगा उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा जो वेस्ट है उसको हम एनर्जी कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं। तो इस कारण से जो लैंडफिल में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था वो भी बच जाएगा, और यूजफुल एनर्जी भी हमको क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ द बायोमास, बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। बायोमास एनर्जी इज नॉट एज सफिशिएंट एज द बायोफ्यूल। अब बायोमास को अगर यूज करेंगे तो फॉसिल फ्यूल के कंपेयर में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कम होती है, मतलब ये लोअर एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड, इट इज नॉट एंटायरली क्लीन फ्यूल। ओके, आप ये कहें कि इट इज ए क्लीन फ्यूल, तो क्लीन फ्यूल नहीं है। जब हम बायोगैस यूज करेंगे तब वो क्लीन फ्यूल होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आप बर्निंग करके और उससे हीट ऑब्टेन कर रहे हैं तो इट इज नॉट द एंटायरली क्लीन प्रोसेस, ऑल्दो इट इज अ कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस। बट जब हम कन्वर्जन करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट जो रहती है, मीथेन गैस वगैरह, वो एनवायरमेंट को क्या करती है, डैमेज करती है। 100% जो मीथेन आपकी है उसको आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कुछ एनवायरमेंट में भी चली जाएगी, और जो मीथेन अगर एनवायरमेंट में चले जाएगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। ओके, तो इट इज नॉट एब्सोल्युटली अ क्लीन फ्यूल। मोरओवर इट कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन। अगर वुड को आप डायरेक्टली बर्न कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वुड कटर्स रहते हैं, वो फॉरेस्ट से लकड़ियां ला ला के और उनको बर्न करते हैं। तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, दिस प्रोसेस ऑफ यूजिंग बायोमास कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन। वहां जंगल से जो लकड़ियां ला रहे हैं तो जंगल में कटाई करना पड़ रही है, तो इट लीड टू डिफॉरेस्टेशन। एंड बायोमास प्लांट रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस। बायोमास जो है उसमें आपको अगर बायो एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो आपको एरिया क्या लगेगा, बड़ा रहेगा। ऑल्दो ऑल दीज डिसएडवांटेजेस हैं इसके, स्टिल बायोमास से बायो एनर्जी जो कन्वर्जन है वो बहुत ही यूजफुल है। ये जितने भी डिसएडवांटेज है वो नलीफाई हो जाते हैं अगर हम बायोमास को प्रॉपर वे में यूज करते हैं।